Hello dear students, welcome back to our channel All One NCRT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So today we are going to start our chapter which is data handling, which we call data handling, and this is a very interesting chapter of your mathematics. So please stay tuned till the last because this will be the very good session for all of you to watch the video till the end. And also if you are new in our channel, please get it subscribed so that we get the motivation to make more videos for all of you. Also you have to like, comment whatever things are being asked, and also you have to watch the video till end. Okay, I hope these all things are clear to all of you. So let us start our today's video, which is a very interesting chapter. We call that data handling. So yes dear students, we are going to start this chapter now. Yeah, so let us start our today's chapter, which is data handling, class 8th grade chapter it is. And yeah, the topics to be covered in this chapter is topics to be covered will be data. About data we have three sections, which is raw and organized data, frequency, grouped data. Now next topic is our representation of data, and the last one topic which I am going to explain you, sorry, not last, the second last, no, it is the last only. So yeah, last topic is chance and probability, dear students. Okay, chance and probability. Yes, we are going to see on this topic also. So I hope dear students this much is clear to all of you, right? So these all things we are going to cover in our chapter. But now I'm going to tell you what we are going to learn in representation of data. We are going to learn about pictograph, bar graph, double bar graph, histogram, pie chart. And in chance and probability, we are going to learn about chance, random experiment, equally likely outcomes as events, probability. So mind map will be what? So dear student, mind map will be like this. Yeah, dear student, your mind map will be like this. First, data, and here representation of data. Okay, now this data handling, after this when we will go in data, so what we are going to see, and data handling के नीचे dear student क्या आने वाला है, let me show you what is going to come. Yeah, so I hope now you are able to see after data handling we are going to come in chance and probability. Yeah, these are going to come in data handling, I am showing you. So yes, so now see dear student what we are going to learn in data and representation of data. Yeah, so now first if I talk about chance and probability, dear students, we are going to learn about chance. This is a mind map which I am making. Okay, so here you are going to learn about probability. Here you are going to learn about outcomes as events, and here is equally likely outcomes
Don't worry, I'm going to explain these all topics in Hindi also. Stay tuned, dear students, so that I can explain you very nicely, right? So I know that you are not able to see outcomes as events, so I'm just rubbing it and writing it again. Wait. Yeah. Outcomes. Yeah, now I seem that you are able to see as events. Then here also I'm just doing rubbing it. Equally likely outcomes. Then we are going to learn about random experiment. Yeah. So there are certain things that we are going to learn about in chance and probability. Now if I talk about data and representation of data, what we are going to learn in these two topics. So the things that we are going to learn in these two topics, we are going to learn about DS student and data. We are going to learn about raw and organized data. Wait, raw. I hope that you are not able to see that. Raw and organized data, and in the uppermost part we are going to learn about grouped data. In representation of data, dear student, I'm going to teach you pie chart, histogram, bar graph, double bar graph, and pictogram. So this will be your overall mind map. So now let us start our session. First, dear students, we are going to learn raw and organized data. What is, dear student, raw data? First of all, I wanted to ask you this. Now the data available to us in the unorganized form is called raw data. Suppose 5, 6, 10, 5, 10, 6, 11, 6, 11, 10, 5 and 4. So this is your unorganized data, which means that it is not organized properly. If I talk about organized data, dear student, it will be like this: 5, 5, 5, right? Organized data I am talking about, okay? And then we can write as 10, 10, 10, then 11, 11, 11, then 6, 6, 6, 6, and then 4, right? I can write it like this also in organized form. So this is your organized data. Now what we are going to learn is about frequency, right? So what is frequency, dear students? So frequency means, suppose your certain numbers are coming very much time, right? See these. Very carefully you have to see, okay? So here I have written certain types of numbers. The frequency of each data will be what? Now I am making one chart. See it very carefully, okay? Yeah. This is what I wanted to make. Now here I have written entry. Here I have written telemarks. And the last one I wanted to write about frequency, okay? Frequency. तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, एंट्री में जैसे मैंने डाला 4, टेलीमार्क्स में व्हाट आई विल राइट 4 कितने बार आया है इस टेबल में, देखो 4 कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो टेलीमार्क में 1 आया, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 4 की, 1 ही रहेगी, राइट? अब अगर मैं नेक्स्ट नंबर लिखूँ जो कि है 5, तो 5 एंट्री में कितने बार आया, 5 एंट्री में 1, 2, 2 बार आया है ना, तो इसके टेलीमार्क्स हो जाएंगे 2 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 होगी, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूँ 10 की, तो 10 कितनी बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, तो टेलीमार्क्स क्या हो गया 4 वाला हो जाएगा, और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी भी 4 लिख दूँगी, राइट? 5 बार आया ना शायद, नहीं 4 बार ही आया, देखो डियर स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, राइट? अब अगर मैं बात करूँ 7 की, 7 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 होगी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे, राइट? तो आई होप दैट इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कितनी बार आपके नंबर यहाँ पे आ रहा है, ये देखो कितनी बार आ रहा है ये नंबर, बहुत बार आ रहा है, तो उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी लिखोगे, ठीक है?
नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रुप्ड डेटा के बारे में, राइट। तो ग्रुप्ड डेटा क्या होता है हम उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आई वांटेड टू इरेज दीज ऑल थिंग्स, राइट। तो व्हाट इज ग्रुप्ड डेटा? अब मैं आपको एक डेटा दे रही हूँ, ठीक है, 21, 10, 30, 22, 33, 5, 37, yes, and 12, 25, 44, 42, 7, 10 again, and then we have 14 and 6, 5, 2, 3, and then we have 51, right? तो मैंने आपको यहाँ 51 तक तो अच्छी तरह डाटा दे दिया। अब मैं ग्रुप डेटा की फॉर्म में अगर कोई चीज़ लिखनी चाहूँ डियर स्टूडेंट्स, so what I will write, okay, wait, I have written here कि numbers till group 0 to 10, टेली मार्क्स भी बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे, ठीक है। तो 0 to 10 के बीच में कौन से नंबर्स आ रहे हैं? देख, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और हमारा साथ ही साथ 7 हो गया, राइट। ये कुछ नंबर हैं जो 1 से 10 के बीच में आ रहे हैं, है ना। आगे समझ में 1 से 10 के बीच में कितने नंबर आने हैं हमारे? इतने नंबर आने हैं, राइट। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 बना दिया टेली मार्क ऐसे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी 5 लिख दी। अब यहाँ पे देखो 10 से 20 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? एक तो ये हो गया हमारा, सॉरी ये 21 है, 10 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया, और उसके बाद फिर 14 हो गया, फिर अगेन 10 हो गया, है ना। ये थे कुछ नंबर जो 10 से 20 के बीच में आए। तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स आर कमिंग बिटवीन 10 to 20। यहाँ मैंने 4 लिखा। अब मैं पूछूँ आपसे कि 20 से 30 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? वॉट यू विल से डियर स्टूडेंट्स? 20 से 30 के बीच में देखो 21 हो गया, 1 2 3, then we have 3 numbers are coming between 20 to 30, तो फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स इधर ही इधर देखो 30 से 40 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? अगेन मैं काउंट करवाऊँगी, ये देखो 1 2 3 एंड देन वी हैव, ये 6 कर दो क्योंकि मेरे को यहाँ 5 एक और दिख गया, ठीक है। 1 2 3 नंबर्स आर कमिंग बिटवीन 30 to 40 ऑल्सो। अब मैं बोलूँगी कि भाई 40 से 50 के बीच में कौन से नंबर्स आ रहे हैं? तो बताओ भैया, 40 से 50 के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क 1 हो गया। अब 50 से 60 के बीच में भी कितना नंबर आ रहा है? सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, वो है 51। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिर 1 होगी। तो ये होता है आपका कुछ ग्रुप्ड डेटा दिया स्टूडेंट। जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये चीज़ थी कि ग्रुप्ड डेटा ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा की तरफ, जो कि है डियर स्टूडेंट्स आपका, अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखूँ वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में। Pictograph, right? What is pictograph, dear students? Pictograph is a pictorial form of representation of data using symbols. हम certain symbols use करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें की पॉइंट्स क्या होंगे डियर स्टूडेंट? पिक्टोग्राफ shows the quantity of ingredients in the pictorial form. Suppose मान लो that this one bat, I am showing you one bat, okay? It represent how much? इट रिप्रेजेंट डियर स्टूडेंट आपका 4 मैच। ये एक बैट आपका 4 मैच रिप्रेजेंट करता है। दिस इज समथिंग दैट वी कॉल द पिक्टोरियल डेटा, क्योंकि इसमें मैं पिक्चर का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट पिक्टोरियल डेटा का अगर मैं मेन की पॉइंट निकालूँ तो वो यही होगा कि मैं अपने डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे करवा रही हूँ? पिक्चर के फॉर्म में करा रही हूँ, सिम्बल्स के फॉर्म में करा रही हूँ। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब देखो इन पिक्टोग्राफ वी यूज की विच डिनोट्स द वैल्यू ऑफ सिंबल। द पार्ट ऑफ एन आइकन कैन बी यूज्ड एज टू डिनोट द लेस और मिनिमम वैल्यू, ठीक है।
अब देखो डियर स्टूडेंट, पिक्टोरियल फॉर्म में मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन कराती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक पिक्टोरियल फॉर्म पिक्टोग्राफ होगा, जिसमें आपका जो होगा रन स्कोर्ड बाय क्रिकेट प्लेयर इन 4 मैचेस, ये हमें पता चलने वाला है, ठीक है। और की कैसे पता चली, व्हाट इज़ द की डियर स्टूडेंट, आप सब सोचोगे मैं की कब से बोल रही हूँ, व्हाट इज़ द की। अब देखो की ये है कि एक बैट जो है आपका, दिस इज वन बैट विच रिप्रेजेंट 100 रन्स, ओके, ये 100 रन्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब आई वांटेड टू शो द पिक्टोग्राफ प्रेजेंटेशन टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आपको एक डेटा दिया है, ठीक है, 500 रन्स दिया है, आपको दिया है 500 रन्स, 100 रन्स, 350 रन और 50 रन्स, ठीक है। अब देखो जैसे मेरे को डेटा के हिसाब से जो डेटा दिया है मैं उसके हिसाब से आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले रन्स यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ बगल में मैं लिख रही हूँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मैंने खाली ये लिख दिया, ठीक है। तो समझ जाओ कि रिप्रेजेंटेशन लिखा है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रन्स दिए हैं 500, तो 500 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 1 2 3 4 5, की को ध्यान रखो, एक बैट 100 रन्स का है। अब देखो 100, तो इसमें तो मैं एक ही बैट रिप्रेजेंट करूँगी। 350 के लिए कितने करूँगी, लेट्स 1 2 3, और एक आधा ही बनाऊँगी, पूरा नहीं बनाऊँगी। Many children are confused in just these silly things, that what they will do if there is half. If there is half, you should make like this. अगर यहाँ पे 50 की जगह में 75 लिखा होता, so what I will do? I will just extend it little bit, but not the full bat size. Okay? मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड ज़रूर करूँगी, लेकिन उसको पूरा बैट का साइज़ नहीं दूँगी, ठीक है। I hope that this is represented by you. Okay? और ये चीज़ आपको रिप्रेजेंट भी करनी है। अगर आप कोई चीज़ की बना रहे हैं तो आपको ये भी दिखाना होगा कि भाई 500 रन्स रिप्रेजेंट 5 बैट्स, जैसे मैंने 100 रन्स रिप्रेजेंट 1 बैट, तो 50 रन्स विल रिप्रेजेंट हाफ बैट, 75 रन्स विल रिप्रेजेंट दिस मच बैट, ये आपको दिखाना है, ठीक है। सो दिस वॉज समथिंग व्हाट आई कॉल्ड एग्जाम्पल, ओके। So this is your example. I hope that you are understanding every and each thing what I am telling you, okay? Right. So now say dear student, we are going to learn about bar graph. Going to learn about bar graph, right? So what is a bar graph, dear student? A display of information using bar of uniform width, their heights being proportional to the respective value. अब heights of a bar is proportional to the value that they represent. हाइट उतनी ही होती है जितनी वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करनी है। बार ग्राफ है 2 एक्सिस, एक तो होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक होती है वाई एक्सिस, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होती है वो तो हॉरिजॉन्टल होती है, और वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल होती है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे बनाओगे। देखो मैंने यहाँ पे एक ये बनाया सिंबल, एक छोटा सा सिंबल है, देख लो सब लोग। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। क्यों यही क्यों एक्स एक्सिस और वो क्यों वाई एक्सिस? बिकॉज वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल होती है और एक्स एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। द स्केल ऑफ बार ग्राफ हेल्प अस टू रिप्रेजेंट द लार्ज वैल्यू विद इन द पेज साइज। छोटे से ही पेज में हम लोग एकदम अच्छी ताज़ी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए आपके बार ग्राफ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है डियर। डोंट थिंक दैट वाई बार ग्राफ्स आर यूज व्हेन दे हैव नो वैल्यू, राइट। कोई भी चीज़ की वैल्यू नहीं, सब चीज़ की वैल्यू होती है डियर। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई बार ग्राफ की वैल्यू तो है, बार ग्राफ की वैल्यू है, राइट। सो आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट द स्केल ऑफ अ बार ग्राफ हेल्प अस टू रिप्रेजेंट द लार्ज नंबर ऑफ विद इन द पेज साइज, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ए बी एंड सी। अब एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने आपको ये बना कर दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको स्केल लिखनी है, ठीक है। स्केल क्या लोगे भैया? स्केल, आई थिंक स्केल शब्द आपको दिख नहीं रहा है, वेट आई एम राइटिंग लिटिल बिट हियर, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल। स्केल
will be what? Graph is taken as 1 unit is equal to 20 liters. Okay. अब है along x-axis ingredients. Along x-axis ingredients are shown. तो x-axis में हमने ingredients दिखाया है. x-axis यानी कि horizontal way में weight I am making. Okay. Great. Yes. I think it's very visible. Yeah. तो ये आपकी x-axis है और यहाँ मैंने ingredients दिखाए हैं. This should be there. Now here मैंने दिखाई है quantity. It's not visible. इधर मैंने दिखाई है quantity. क्वांटिटी दिखाई है इंग्रेडिएंट्स की इन लीटर्स. अब डियर स्टूडेंट मैं इधर एक यूनिट मैंने ली है 20 लीटर्स. ठीक है, मतलब एक यूनिट 20 लीटर्स की है. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है. अब यहाँ सर्टेन टाइप्स ऑफ बॉक्स होते हैं ना आपके जब आप ग्राफ पेपर्स देते हैं. तो यहाँ पे देखो मैं 40 को रिप्रेजेंट कैसे करूँगी, इधर करूँगी क्योंकि एक यूनिट 20 रिप्रेजेंट कर रही है. नेक्स्ट मैंने इधर लिख दिया है 80. इधर मैंने लिखा है 120. इधर मैंने लिखा है 160. ये आपको अपने हिसाब से लिखना होगा डियर स्टूडेंट. 1 यूनिट अगर 20 की है तो कितना लिखोगे ऊपर ये देख लो. ठीक है, 280. आई थिंक इतना सबको विजिबल है, हो रहा होगा. यस डियर स्टूडेंट. तो यहाँ 280 तक मैंने चीज़ें लिख दी हैं डियर स्टूडेंट, आपको दिख गई होंगी अच्छी खासी. अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट. तो अब यहाँ पे मैं अगर 240 रिप्रेजेंट करूँगी आई विल गो हेयर अपवर्ड जाऊँगी, ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी. एंड 280 रिप्रेजेंट करना है आई विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. 160 करना है आई विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिख रखे. और मेरे को लग रहा है आपको अगर विजिबल नहीं हो रही, आई एम जस्ट शिफ्टिंग बैक एंड नाउ आई थिंक इट्स विजिबल. माई राइटिंग इज़ लिटिल बिट नॉट वेरी गुड, सो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ विद इट. ओके, सो ये है कुछ चीज़ जो आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द बार ग्राफ. ओके, अब बार ग्राफ भी कंटिन्यू हो गया पूरा, तो अब हम पढ़ते हैं डबल बार ग्राफ में. बाद में वैसे तो ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर क्लास 7, बट अगेन यू आर इन द क्लास 8. आई एम टेलिंग डबल बार ग्राफ की क्या कंडीशन है. बार ग्राफ सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल बार ग्राफ लिख देती हूँ. ठीक है, डबल बार ग्राफ. आई थिंक आई हैव all of you are able to see it. A bar graph showing two sets of data simultaneously, it is useful for the comparison of the data. Condition for drawing a joint bar graph will be what? The number of sample must be same, scale also must be same, और data type भी same होना चाहिए, different नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. ठीक है, फटाफट आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह. लेट अस टेक द एग्जांपल. सो नाउ देखो स्केल मैंने ली है 1 यूनिट, वही सेम एग्जांपल दे रही हूँ लेकिन थोड़ा डिफरेंट. ठीक है, 20 लीटर, और मैंने जोन 1 और जोन 2 बनाया. ठीक है, अब द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए इन जोन 1 इज 240 लीटर, और उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. एंड जोन 2 इज 60 लीटर. ठीक है, ए की जोन 1 में 240 लीटर्स है और जोन 2 में 60 लीटर्स है. मैं बार ग्राफ भी बना देती हूँ ताकि साथ ही साथ में वहाँ बनते भी रहे. ठीक है, सो स्केल कितनी की है डियर स्टूडेंट. स्केल है आपकी एक यूनिट 20 लीटर्स की. तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा. तो जोन 1 डियर स्टूडेंट हाउ आई विल मेक, सी वेरी सिंपल. मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे कह दिया भाई जोन 1 कुछ अलग कलर का है और जोन 2 कुछ अलग कलर का है. ठीक है, जोन 1 जोन 2, राइट. तो मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले 40 80 नंबर्स लिख लिए. ठीक है, नंबर्स लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, या 280 लीटर्स तक मैंने पूरा ऊपर तक नंबर लिख दिए हैं. आई होप दैट यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन वेरी केयरफुली. सो अब देखो डियर स्टूडेंट, व्हाट आई विल रिप्रेजेंट, व्हाट दे हैव गिवन मी इन्फॉर्मेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट ए इन जोन 1 इज 140 लीटर. जोन 1 में बना रही हूँ 140 लीटर्स तक है. जोन 1 मैंने कलरफुल बनाया तो मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मेरे से बोलना है एंड जोन 2
में वो 60 लीटर्स है, ठीक है। तो 60 लीटर्स ऑल्सो इधर आएगा ना, 60 लीटर्स कितने का अंतर होता है, 20 का अंतर। तो यहाँ पे 60 लीटर्स है, सो आई हैव मेड इट लाइक दिस, राइट। और इनको आप पूरा अलग अलग करके नहीं बनाते डियर स्टूडेंट, वेट, इनको आप ऐसे चिपका के बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ए इंग्रेडिएंट का जोन 1 है और यह जोन 2 है। Whereas if I have to show the quantity of ingredient of B in zone 1 is 120 लीटर। तो 120 लीटर मैंने अब छोड़ के बनाया, इधर तक 120 लीटर्स आ गया, और मैंने इसको जोन 1 है इसलिए ऐसे कलर कर दिया। देन जोन 2 इज़ 160 लीटर, तो मैंने 160 लीटर को चिपका के ही ऊपर मैं यहाँ ले गई और मैंने यहाँ बना लिया, और ये हो गया जोन 2। अब इंग्रेडिएंट सी का जोन 1 में 180 लीटर है। 180 लीटर कितने किसके बीच में आएगा, 160 लीटर और 120 लीटर के बीच में आएगा इधर ना। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी, राइट। सो हेयर इज इट इज़ कमिंग हेयर ओनली, राइट। ओके, वेट वेट वेट, आई एम जस्ट फिक्सिंग इट। या जोन 1 मैंने बना लिया। अब डियर स्टूडेंट इसका सी इंग्रेडिएंट का जोन 2 है 220 लीटर्स। 220 लीटर 240 लीटर्स के नीचे ही आएगा, यहाँ 200 और 240 के बीच में। तो मैंने ऊपर गई सीधा और मैंने यहाँ पे बना लिया जोन 2, ठीक है। अगर गड़बड़ हो सकती है क्योंकि डियर स्टूडेंट आई एम नॉट यूजिंग द परफेक्ट ग्राफ पेपर। अगर मैं ग्राफ पेपर यूज़ कर रही होती तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू मेक, राइट, बट आई एम नॉट यूजिंग द ग्राफ पेपर, सो डेट्स वाई। तो ऐसा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, अपना बार ग्राफ, बहुत ही डबल बार ग्राफ बहुत ही इजीली, राइट। तो अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। फर्स्ट आई एम इरेजिंग दिस सो दैट यू आर एबल टू सी, राइट। Okay, I thought that you all are visible to the screen is visible to all of you, right? So सबसे पहले मैंने यहाँ टॉप मोस्ट में लिख दिया हिस्टोग्राम, right? अब देखो हिस्टोग्राम इज अ graphical representation of grouped frequency data with continuous classes. Height of the bar represent the frequency of the class interval. Width of the bar represent the class size and class interval. There is no gap between the histogram. तो हिस्टोग्राम में क्या अंतर कितना होता है ना बेटा कि उसमें आपका गैप नहीं होता है, होता बार ग्राफ जैसा ही है लेकिन गैप नहीं होगा। बस मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ। मैंने स्केल ले ली है 2 यूनिट्स इजिकल टू 5 स्टूडेंट्स, राइट। 2 units is equal to 5 students. The class size is 10. Along x-axis marks of the student obtained by the student is shown. तो अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टूडेंट 2 units is equal to 5 students. सो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट्स आ गई। अब मार्क्स ऑब्टेन मेरे को दिखाने हैं मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे लिया स्केल 2 यूनिट्स इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ना सी एक स्टूडेंट के 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 हैं। अब मैं इसमें से कुछ चिपका के ही पूरा ऊपर कर दूँगी, इसमें गैप वैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो मैंने ऐसे करा, उसके बाद फिर मैं यहाँ ऊपर गई, मैंने 10 कर दिया, मतलब कि 10 स्टूडेंट की अब जो है 20 मार्क्स है 10 स्टूडेंट्स के। उसके बाद फिर मैंने सेम वे में जो है ऊपर करा और मैंने कहा कि भाई 20 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं। मैंने नीचे भी लिख दी स्केल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग बनाते हैं क्या, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का अंतर कितना है कि इसमें गैपिंग नहीं होती, जो आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन में, ठीक है डियर स्टूडेंट, गैपिंग हिस्टोग्राम में नहीं होगी, राइट। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा हिस्टोग्राम के बारे में। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आता है हमारा पॉइंट, जो कि है आपका सर्कल के बारे में, पाई चार्ट। पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डेटा इन सर्कुलर ग्राफ दैट साइजेस ऑफ पाई शोज रिलेटिव साइज ऑफ डेटा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिख दूँ पाई चार्ट, राइट। अब द होल circle is divided into sectors.
circle graph shows the relationship between a whole and its part. The size of each sector is proportional to the activity or information it represents. For drawing pie chart, dear students, we need to find the central angle of the sectors, right? The total angle at the center of the circle is 360. Total 360 होता है. मैं अभी सब समझाऊंगी dear students, don't worry. Let us consider the following example. तो अब सबसे पहले समझ जाओ कि पाई चार्ट सर्कुलर में ही होगा. इसमें डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं ऐसे कटे हुए, और सबका जो है मैं आपको बताना चाह रही हूँ सेंटर एंगल जो होता है ना, ये सारे एंगल्स का सेक्टर जो बने इन सब का सेंट्रल एंगल कितना होगा. सेंट्रल एंगल आपका 360 डिग्री होगा. 360 डिग्री ये सबने ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, अभी डेटा हैंडलिंग में भी पढ़ लो. 360 डिग्री होगा. ये आई थिंक आप सभी को जो है इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, राइट. अब देखो डियर स्टूडेंट, पाई चार्ट 360 डिग्री मैंने आपको बता दिया. अब है एक कंसीडर करो एग्जांपल. मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी है, तो इन्फॉर्मेशन ये है कि डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट फेवरेट आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, जैसे चॉकलेट, वनीला, अदर फ्लेवर्स. तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट मेरे को दी है जो चॉकलेट पसंद करते हैं. चॉकोलेट जो पसंद करते हैं वो है 50% स्टूडेंट. वनीला वाली फ्लेवर की आइसक्रीम कितने परसेंट करते हैं बच्चे? 25%. अदर फ्लेवर्स वाले बच्चे जो हैं फ्लेवर्स वो है 25 स्टूडेंट ही. कुल मिला के ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल लिया. मेरे को इसका पाई चार्ट फॉर्म करना है, तो मैं कैसे करूँगी, ये है मेन बात. तो आप पाई चार्ट फॉर्म करने के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन तो मिल गई. अब मैं करती हूँ पाई चार्ट फॉर्म. सबसे पहले मेरे को इनका सेंटर एंगल निकाल लूँगा, है ना, तभी तो पाई चार्ट फॉर्म करूँगी, क्योंकि मेरे को परसेंट में दिया है. तो सेंटर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट? आपको क्या दी है? परसेंट दी है. परसेंट मतलब क्या होता है? 50/100. कोई भी चीज़ 100 से डिवाइड होती है तभी वो परसेंट कहलाती है ना. तो अब सेंटर एंगल कैसे निकालूंगी? 50/100 मल्टीप्लाई बाय 360 हुआ ये 50% लेंगे. मैंने इसको अच्छी तरह तोड़ के लिख दिया है, उससे ज़्यादा इजीली आप डिवाइड कर लोगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट डिवाइडिंग दिस होल सिनेरियो. तो मैंने इसको 25 से काट दिया, मैं 4 से काट दूँ, ठीक है. फर्दर डिविजिबल होता है, सो इट्स अ गुड थिंग, राइट. तो इसका पूरा डिवाइड करके जो मेरा निकलेगा आंसर वो कितना होगा? वो सबसे पहले ना इजीली आप कैसे डिवाइड करो ये सब आप सोच रहे होगे. 100 लिखा, 360 लेते हुए 0 से 0 पहले ही काट लिया करो. 0 से 0 काटने के बाद देखो कि 10 और 36 किससे डिविजिबल है? दोनों के दोनों नंबर. आपके 2 से डिविजिबल हर चीज़ होती है ना. 5 कट गया और यहाँ से 18 कट गया. 18 5 से कितना होता है? 90 होता है, लेकिन 0 भी है, तो 900/5 कितना आंसर आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, राइट. तो 180 डिग्री तो भैया हमें 50% का निकल गया सेंटर एंगल, राइट. अभी हमें थोड़ी और चीज़ों का निकालना है, जो कि है डियर स्टूडेंट आपका 25% और एक और 25%, राइट. तो मैंने 50% का तो निकाल लिया, जो कि सेंटर एंगल कितना है? 180 डिग्री है. 25% का भी निकाल लेती हूँ फटाफट. ये देख लो डियर स्टूडेंट, बहुत इजीली निकल जाता है. इसमें आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है. इजीली आपका सेंटर एंगल निकल जाता है. कोई काटा पीटी वगैरह नहीं करनी है, सीधे सीधे सेंटर एंगल निकाल लिया करो, ठीक है. और इसका सेंटर एंगल कितना आएगा डियर स्टूडेंट? आपका 90 डिग्री आएगा. कितना आएगा? 90 डिग्री, ठीक है. 90 डिग्री आ गया 25 का सेंटर एंगल. तब इतना सेंट्रल एंगल हमें पता चल गया. 25% का भी सेंट्रल एंगल कितना है? 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो अब आप बोलोगे भाई सेंट्रल एंगल निकाल के हम कैसे पाई चार्ट बनाएं? सेंट्रल एंगल निकाल के तो पाई चार्ट बन रहा है डियर स्टूडेंट. देखो मैंने इधर बना दिया एक सर्कल, और इसी सर्कल में मैं पाई चार्ट बना के दिखाती हूँ. हाँ, बच्चों को चॉकलेट पसंद है. 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट लाइन बन गया 80 डिग्री का 180 डिग्री एंगल. और यहाँ पे मैंने लिख दिया चॉकोलेट जो बच्चों को पसंद है चॉकलेट, राइट. अब 25% 90 डिग्री है. परपेंडिकुलर लाइन खींच दी. इतना वनीला पसंद है और इतना बच्चों को अदर फ्लेवर, ठीक है.
तो मतलब ऐसे आपको पाई चार्ट बनाना है, रिप्रेजेंट आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी की तरफ। व्हाट आर चांस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, लेट अस सी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग मेरी गलत है, वेट डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी, राइट। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? चांस के बारे में पहले पढ़ते हैं। अ चांस इज द अकरेंस ऑफ अ इवेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस इंटेंशन ऑफ कॉज. It is the possibility of something happening. Sometimes we usually say that there is a high chance of raining looking the sky. तो कभी कभी क्या होता है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कभी कभी क्या होता है, अचानक से जिसकी चीज़ चांस होती है ना डियर स्टूडेंट, जैसे हम कभी कभी देखकर कहते नहीं कि भाई आज बारिश होने की चांस है, मौसम को देख के, है ना। तो यही चीज़ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। समटाइम लुकिंग एट द सन वी कैन से दैट देयर इज अ लो चांस ऑफ रेनिंग। चांस तो है नहीं रेनिंग का, है ना। अब आते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ये एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज अनसर्टेन एंड टर्म्ड एज रैंडम। मतलब उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। क्या हेड आएगा या तो, और या टेल आएगा, इन दोनों में से ही एक चीज़ आएगी, है ना। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली, मतलब कि हेड और टेल दोनों की 50% चांसेस हैं, इक्वल डिवाइडेड है दोनों। आउटकम्स एज इवेंट्स, यानी कि ईच आउटकम हैज़ एन इवेंट और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल in the experiment of tossing coin, getting head is an event and getting tail is also an event. दोनों ही हमें दोनों मिले या ना मिले, दोनों आपके इवेंट हैं जो हम चाहते हैं आए, राइट। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या पॉसिबिलिटी है उस पर्टिकुलर आउटकम की? वही चीज़ आएगी, आपका हेड ही आएगा। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 में ही आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एक्सप्रेस की जाती है, वेयर 0 मीन्स इवेंट टू बी एन अनपॉसिबल एंड 1 मीन्स इट इंडिकेट सर्टेन इवेंट्स। तो 0 मीन्स दैट इट इज इम्पॉसिबल और 1 इंडिकेट सर्टेन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, राइट? ये आप सभी लोग पूछ रहे होगे, सो आई वांटेड टू टेल यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equal to number of favorable outcomes, और total number of outcomes, total number of possible outcomes। इसका मतलब क्या हुआ कि फेवरेबल आउटकम जो आप चाहते हो, मतलब एक डाइस है, उसमें अगर आउटकम्स कितने आ सकते हैं, डाइस में आपके 6 फेसेस होते हैं ना, तो आउटकम्स तो पॉसिबल 6 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका इवन नंबर का ही आउटकम आएगा। तो इवन नंबर कितने हुए क्यों आपके 6 फेसेस में से? एक तो आपका 2 हुआ, एक आपका 4 हुआ और एक आपका 6 हुआ, है ना। तो 3 नंबर्स है, तो 3/6 हो गया। 3/6 में आई विल गेट द प्रोबेबिलिटी एज 1/2, राइट। तो ये कुछ चीज़ होती है जैसे आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे ये हमारा चैप्टर है डेटा हैंडलिंग ख़त्म होता है। डियर स्टूडेंट, आई नो दैट you all have understood this chapter very nicely and you can do each and every sum related to this chapter. I hope that this is clear to all of you. Thank you so much for watching our video. I hope that you like it and will definitely subscribe our channel. So bye dear students, we will meet in our next video. Till then, bye bye, see you next. Subscribe now.